Gora, Gora, Nittai Gora, 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 Nittai Gora, 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 Nittai Gora, Hare. Welcome to Janadit. स्थान है। Janadit is the special island of Janamuni और सड़क के साथ गंगा की तरफ हम वहां पहुंचते हैं जहां पांचों पांडव resided. व द्रौपदी When the Bhagirathi was being taken down the Ganges, रहते थे। ये जगह it started to flood Janamuni's ashram. महत्वपूर्ण कहलाती है। He was a great वो भी एक sage, लुप्त तीर्थ था जिसे हम great rishi. हरे He had mystic powers. Angry at the Ganges, I drank it. He drank it. Ah! And then Maharaj, he was going down taking his rod, taking it away from the Ganges. And he saw that there was no Ganges. And then he approached Janamuni and he questioned him to please halt up the Ganges. He said, I'm sorry, I digested her. I said, if you can drink the Ganges and digest the Ganges, then you can also reproduce the Ganges. And then Janamuni, the Ganges came out from his knee. And then that's why one of the names of the Ganges is Janavi. She came from Janamuni, from his knee. So then we go to the temple of Sangataka. And the deity of Vasudeva Datta is also there. And then we leave Janadit and go to Madhudamdit. See the birthplace of His Holiness, His Divine Grace, Vrindavan Thakur. On our way from the Vrindavan Thakur birthplace, we find on the side of the old Ganga
Arkatila, which is not distant from Sujikunda. And that is the holy place in Navadvip Dham. That is a holy place in Navadvip Dham. And then he head along the road Then we head along the road by the side of the Ganga. by the side of the Ganga. There we reached a place where the 5 Pandavas and Draupadi resided. Then we reached to a place where 5 Pandavas and Draupadi resided. That place is known as Mahatpur. That place is known as Mahatpur. That's also Lupta Tirtha that we located. That's also a Lupta Tirtha which we located. Hare Krishna, Bhakti Vrinda. আমরা জনদ্বীপে এসেছি এবং এখানে এই পবিত্র স্থান হচ্ছে জনদ্বীপ মুনির আশ্রম। Hare Krishna devotees. My name मेरा is नाम Bhakti भक्ति Chaitanya चैतन्य स्वामी Swami. है। I'm very happy मैं to यहाँ be आकर here आप with लोगों you, के साथ बहुत प्रसन्न हूँ participating in this इस wonderful अद्भुत वर्चुअल परिक्रमा में virtual भाग लेकर। Navadvip Mandal Parikrama. आज हम Today we're जहनु going द्वीप to में जा रहे Janudvip. हैं। To begin, शुभारंभ let me करने just से पहले read मुझे एक a प्रार्थना पढ़नी है prayer जो from श्रील Srila प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखी है। Saraswati. He prayed, वे प्रार्थना करते हैं कि I pray that जन्म दर birth जन्म after birth, मैं I may घास be का a गुच्छा tuft of बनूं इस grass झानु द्वीप में, in the land of Janudvip, जो which देवताओं is के राजा worshipped के द्वारा भी even by पूजनीय the है। king of the demigods. बस That वही would मेरी be my प्रसन्नता joy. होगी। Yes, so तो जब नित्यानंद प्रभु when श्रील जीव Lord गोस्वामी को Nityananda was नवद्वीप taking धाम Srila मंडल Jiva की परिक्रमा पर ले Goswami जा रहे थे, on their great Navadvip Mandal Parikrama, तो वे जब and यहाँ when पहुंचे they झानु द्वीप came में, here to Janudvip, उन्होंने अति सुंदर they saw एक आश्रम कुटीर the देखा hermitage, झानु मुनि का। beautiful hermitage of Janu Muni, and Lord तब Nityananda नित्यानंद प्रभु told ने जीव Jiva गोस्वामी को बोला, Goswami, ये "This सम्मोहक enchanting स्थान झानु place द्वीप है, named Janudvip जिसे is known वृंदावन में as भद्रवन कहते हैं। Bhadravan in Vrindavan. At this इस स्थान place, पर Janu झानुद्वीप Muni ने घोर underwent तपस्या की penances और भगवान and गौरंग received के darshan सुनहरे रूप of का the दर्शन golden पाया। form of Gauranga. Yes, so यहाँ तो it's a little bit ये of a एक long लंबी कहानी story. है। In Krishna कृष्ण consciousness, भावनामृत we में have कई many लंबी long लंबी कहानियां stories. होती हैं, But of course, किंतु झानुद्वीप नवद्वीप के 9 द्वीपों में Janudvip से is एक one है। of the 9 islands of Navadvip. Traditionally, at least traditionally, पारंपरिक by रूप से our standards, इस्कॉन के and मानकों के standards, हिसाब से previously, झानुद्वीप ऐसा द्वीप होता था जिसे हम सबसे तीव्रता से देख लेते थे, जल्दी से, in a matter of maybe लगभग an एक ही hour घंटे or में। something, we'd come from कैसे हम Vijayanagar विजयनगर से प्रातः जल्दी early in the morning, and we'd just यहाँ walk से straight बिल्कुल through. सीधे मार्ग पर सड़क पर निकल जाते थे और फिर मोदद्रुम द्वीप पर जाते थे और वहाँ एक विशाल बरगद के पेड़ के सामने रुकते थे जो दाईं ओर था, और जो मैं अब आपको समझाने वाला हूँ वो वहाँ समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं। कई साल पहले एक बहुत महान राजा था जिसका नाम था महाराज सगर। वह अश्वमेध यज्ञ करना चाहता था, तो उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की थी, सब कुछ तैयार किया था यज्ञ के लिए। और अश्वमेध यज्ञ का मतलब है जाहिर है अश्व का त्याग, घोड़ा। तो उनके पास बहुत ही उत्तम, एक विशेष, बहुत ही विशेष घोड़ा था, कोई ऐसा वैसा नहीं। और जैसे ही वे आरंभ करने वाले थे, इंद्र भगवान ने घोड़े को चुरा लिया। तो अब क्या करें? वे ऐसे ही कोई भी दूसरा घोड़ा नहीं ले सकते थे, उन्हें वही घोड़ा पुनः वापस चाहिए था। तो महाराज सगर के पुत्र
Maharaj Sagar, राजा सगर की दो पत्नियां थीं, सुमति और केशनी। his sons through सुमति के Sumati, पुत्र घोड़े को they ढूंढने went and गए। searched for that horse. Eventually they found फलतः their way उन्हें down to जो मार्ग मिला, what is जो the वर्तमान में current गंगा day सागर क्षेत्र Ganga कहलाता Sagar है, area, जहाँ just से where the गंगा हिंद Ganges महासागर में enters मिलती the है, Indian और Ocean. तुरंत ही वहां पर And sure एक enough, आश्रम at में that ashram, they उन्हें saw अपना घोड़ा दिखाई the दिया। horse. तो उन्होंने सोचा कि जो भी इस आश्रम का स्वामी है Whoever उसी ने owns घोड़े this को चुराया ashram होगा। must have stolen the horse. Now, तो अब the person उस who आश्रम owned के the मालिक जो ashram थे वो थे was कपिल भगवान। Lord Kapila. और And उन those नौजवान young युवकों ने men ये made the बहुत very भयानक गलती terrible कर दी, mistake of accusing उन पर him of चोरी का stealing the आरोप horse. लगाकर। He is the supreme वे परम personality पुरुषोत्तम of भगवान हैं, Godhead. वे ऐसा कैसे How कर can सकते they हैं? do that? So वास्तव में वे उन they पर came to attack him. आक्रमण करने लगे, But then किंतु कपिल Lord भगवान ने उन्हें Kapila भस्म कर दिया। burnt them to ashes. So now तो there अब were just a आश्रम के whole lot सामने of राख का ढेर लग piles गया। of ashes in front of the ashram. So यह समाचार so महाराज the सगर news के got पास back पहुंचा। to Maharaj Sagar. And तो उनकी his दूसरी second पत्नी wife, केशनी का जो Keshini, एक पुत्र she था, had a son उसका नाम named था असमंजस। Asamanjasa. And तो he उसने tried to समस्या का sort समाधान things करने out. का He प्रयास couldn't. किया, But then पर नहीं his कर पाया। son, Ansuman, तो फिर उसके he पुत्र dedicated अंशुमन ने himself, अपने आप को to समर्पित get the किया horse back, इस कार्य के लिए, घोड़े को and वापस also लाने to के लिए, make arrangements और अपने पूर्वजों to अर्थात deliver अपने चाचाओं, his forefathers, his uncles, तो who were जो down there आश्रम at में that जिनकी ashram, देह जलकर राख हो गई थी, उनके their उद्धार की भी bodies burnt उन्होंने to सोची। ashes. So तो वे वहां गए he और went and कपिल भगवान से met मिले with Lord Kapila and offered और prayers to him very बहुत ही humbly प्यारी and और very विनम्र earnestly. प्रार्थनाएं अर्पित की। And Lord Kapila gave him तो the कपिल horse भगवान back. ने उन्हें उनका घोड़ा वापस दे But दिया, then Ansuman पर अंशुमन वहां से didn't गए leave. नहीं। वे He वहीं just खड़े stood रहे, there एकदम silently. मौन, और In his मन ही heart he मन was प्रार्थनाएं praying करते रहे, कृपया आप मेरी सहायता करें मेरे पूर्वजों का उद्धार करने में, जिनकी देह यहाँ पर जलकर राख हो गई है in front of आपके the आश्रम के ashram. सामने। So Lord Kapila, he understood and he said that if you put water from तो the भगवान कपिल समझ गए और बोले, on the अगर तुम ashes गंगा का जल of the अपने bodies पूर्वजों of की your राख पर डालोगे forefathers, they'll be delivered. So, तो उनका उद्धार so हो just जाएगा। go get तो some. जाओ, जाकर कुछ गंगा का जल ले आओ। Now, in those days, the Ganges was उन not, दिनों the में Ganges गंगा was इस not ग्रह पर नहीं flowing बहती थी, through भारत में प्रवाहित the नहीं होती planet थी and through जैसे India वर्तमान as में it होती does हैं। now. Yeah, it needed to be brought उन्हें from, उच्चतर स्थानों से नीचे लाना higher पड़ता था। regions. So तो अंशुमन घोड़े को लेकर गए और यज्ञ संपन्न करवाया, sacrifice was done. Then और महाराज Maharaj सगर ने Sagar राजपाट उन्हें handed सौंप over दिया। the kingdom to him. फिर And अंशुमन ने Ansuman, तपस्या करने का he started a विचार program of किया, performing गंगा को नीचे austerity लाने के to लिए, try इस to ग्रह get पर the लाने के लिए, Ganges, to come down to planet Earth. पर But इससे before पहले कि he वे could be उन्हें successful, सफलता he मिलती, died. उनकी मृत्यु हो गई। Then फिर his उनके son, पुत्र his थे son दिलीप। was Dilip, who was also वे a भी very बहुत pious पवित्र king राजा and थे who also wanted और वे to भी do the यही same करना thing, चाहते but थे, he also किंतु वे भी गंगा को died नीचे लाने before में he सफल could न be हो पाए, successful और in उससे bringing पहले ही the उनकी भी Ganges. मृत्यु हो गई। His son was उनके पुत्र थे Bhagirath. भागीरथ, और भागीरथ पूर्ण रूप से दृढ़ प्रतिज्ञ थे सफलता प्राप्त करने के लिए, to गंगा make को a नीचे success लाने के of लिए, this अपने and bring पूर्वजों the का उद्धार Ganges करने के लिए। and deliver his forefathers. So he performed तो इन्होंने कई severe तपस्याएं की austerities और and गंगा prayed to से the प्रकट होने Ganges के to लिए appear. उनकी And आराधना Mother करी। Ganga came माँ गंगा and नीचे revealed आई herself और to अपने him. आप को उनके So सामने he प्रकट appealed किया। to her, please come तो with उन्होंने me. इनसे प्रार्थना की थी Means कि flow आप मेरे down साथ आइए through और the इस ब्रह्मांड universe और इस and ग्रह through में this प्रवाहित planet. हो जाइए, ताकि मैं आपके And जल then I से can अपने place the पूर्वजों की waters on the ashes of राख my पर forefathers. आपके जल को डाल सकूं And she was not और उनका उद्धार हो unwilling, सके। but माँ she गंगा had two अनिच्छुक नहीं concerns. थी, पर फिर भी उनकी She दो said चिंताएं थीं। that, उन्होंने कहा, अगर मैं नीचे आती हूँ when इस if I ब्रह्मांड से come होकर down through the universe to इस land ग्रह on की this भूमि पर, planet,
तो मेरा वेग इतना अधिक होगा कि ये ग्रह मुझसे टकराकर नष्ट हो जाएगा। तो मुझे एक सशक्त, बलशाली मनुष्य की आवश्यकता होगी, व्यक्ति की आवश्यकता होगी, जो मुझे थामे जब मैं नीचे धरती पर गिर रही हूँ। इसके अतिरिक्त जब मैं इस धरती पर बहने लगूंगी, मेरा पानी इस ग्रह पर बहेगा, तो कई पापी लोग मेरे पानी में, मेरे जल में स्नान करेंगे और वह दूषित हो जाएगा। तो किसी न किसी तरह कोई व्यवस्था करनी होगी जिससे मेरा जल दूषित न हो। तो भागीरथ महाराज, जो बहुत बुद्धिमान थे, वे बोले, मैं भगवान शिव से बात करूंगा आपके जल को थामने के लिए इस धरती पर आने से पहले। और आपके जल को पवित्र करने के लिए कई महान भक्त पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जल में स्नान करेंगे। इस तरह से आपका जल पवित्र रहेगा। तो माँ गंगा मान गई और नीचे आ गई। उन्होंने भगवान शिव के मस्तक पर अवतरण किया और फिर शिव ने अपने सिर से गंगा जल का एक झरना प्रवाहित किया जो इस ग्रह पर गिरा। फिर महाराज भागीरथ अपना घोड़ा दौड़ाते हुए हिमालय से होते हुए नीचे की तरफ गए, गंगा के मैदानों की तरफ, उत्तर पूर्वी भारत की तरफ, और वो अपने घोड़े पर चलते रहे और गंगा उनके पीछे आ रही थी। फिर वो नवद्वीप क्षेत्र में पहुंचे तो अचानक उन्हें ये आभास हुआ कि गंगा उनके पीछे नहीं थी। क्या हुआ था? दो बातें हुई थी। एक बात तो यह थी कि माँ गंगा, उनको पता था कि उनके प्रभु भगवान चैतन्य, गौरांग महाप्रभु वहां नवद्वीप में प्रकट होने वाले हैं कलयुग में, तो उन्हें उस स्थान के दर्शन करने थे, इसलिए वे रुकी थी। और दूसरी बात यह थी कि उस समय झानु मुनि वहीं झानु द्वीप में निवास कर रहे थे, वहीं अपने आश्रम में, और वे पूजा कर रहे थे। जब गंगा अचानक आ गई और वे वस्तुओं को बहाकर ले जाने लगे, वे उनके आचमन पात्र को भी बहा ले गई। तो इस बात से झानु मुनि अप्रसन्न हो गए। तो उन्होंने संपूर्ण गंगा को निगल लिया। ओ कृष्णा। तो भागीरथ समझ गए कि क्या हुआ है। वे झानु मुनि के पास गए और 7 दिन तक उन्होंने उनसे विनम्र प्रार्थनाएं की कि कृपा करके गंगा को मुक्त करें ताकि मैं अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकूं। फलतः झानु मुनि मान गए और जो गंगा उनके भीतर थी उसे उन्होंने अपनी जांघ के द्वारा मुक्त किया, और इसलिए माँ गंगा का एक नाम जाह्नवी है। उन्हें झानु मुनि की पुत्री की भांति माना जाता है और फिर वे आगे बढ़े। महाराज भागीरथ आगे आगे अपने घोड़े पे, और गंगा उमड़ती हुई उनके पीछे पीछे आती रही, उन ग्राम क्षेत्रों से जो अब पश्चिम बंगाल में हैं। फिर वे गंगा सागर के पास पहुंचे और महाराज भागीरथ कुछ जल लेने में सक्षम हुए और पूर्वजों की राख पर डाल सके, और इस तरह उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। हाँ, तो यह एक असाधारण लीला है। अभी इसमें बताने को और भी है, ये एक लंबी कहानी है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। तो बस इसका सार है। और अब यहाँ हमारे अद्भुत वर्चुअल नवद्वीप धाम परिक्रमा में, तो अब हम यहाँ हैं इस बहुत बहुत पवित्र स्थान पर। हाँ, अभी हाल ही के वर्षों में हमारे भक्तों ने यहाँ पर कुछ भूमि का अर्जन किया है,
यहाँ मुख्य सड़क से दूर, तो अब हम जानू द्वीप से जल्दी से नहीं निकलते, जैसा कि मुझे करना याद है कई बार भूतकाल में। We don't just sort of zip through Janu Dweep so quickly, as I remember having done many times in the past. But now the devotees stay overnight on Janu Dweep and are able to take in. अब तो भक्त पूरी रात यहाँ रुकते हैं जानू द्वीप में, और इस रमणीय उत्कृष्ट दिव्य प्रकृति को वे आत्मसात करते हैं। और वहाँ ऊपर जहाँ जानू द्वीप में हमारा इस्कॉन आश्रम है, एक बहुत ही सुंदर वन है, बहुत शांत। आप वहाँ के दिव्य वातावरण को अनुभव कर सकते हैं। तो गौरांग प्रभु यहाँ नित्य अपनी लीलाएं कर रहे हैं। यहाँ जानू द्वीप में वे पूरे नवद्वीप धाम में विद्यमान हैं, और अभी भी इस वर्चुअल रूप में अगर हम अच्छी तरह से भगवान की पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, और अगर हम स्वयं को पूर्ण रूप से इस लीला की अपनी स्मृति में हम अपने आप को आत्मसात करते हैं, तो हम भी महाप्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं इस परिक्रमा में। हरे कृष्णा। Then we'll also feel the presence of Lord Gauranga during this parikrama. Hare Krishna. Shri Janamuni Ki, Maharaj Bhagirath Ki, Shri Janudweep Ki, Shri Gauranga Mahaprabhu Ki, Shri Navadweep Mandal Parikrama Ki, Srila Prabhupada Ki, Go Premanande. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Nitai Gauranga Jaya Gaura Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, हम अभी भी परिक्रमा में हैं। नवद्वीप परिक्रमा में एक अमूल्य अवसर है जो हमें आचार्यों द्वारा दिया गया है। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को परिक्रमा पर ले गए थे, तो श्रील प्रभुपाद ने वही किया और उन्होंने भी परिक्रमा आरंभ की। सबको ये करना चाहिए। हर वर्ष भक्तों को विभिन्न स्थानों से यहाँ आना चाहिए स्वयं को शुद्ध करने के लिए। वृंदावन परिक्रमा करो, नवद्वीप परिक्रमा करो, प्रभुपाद ने यह स्थापित किया है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है, ये कोई नया उपक्रम नहीं है, हमारे आचार्यों ने इसे स्थापित किया है, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसका निष्ठा पूर्वक अनुगमन करें। आखिर हमारी तो प्रणाली ही अनुगमन करने की है। तो हम कौन से द्वीप पर हैं? मोद्द्रुम द्वीप पर। और वो कौन है जिन्होंने अपना जीवन यहाँ पर सार्थक किया? हनुमान जी। और वे भक्ति के कौन से अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं? दास्य, दास्य, दास्य भाव, सेवा। हनुमान जी सेवा के प्रतीक हैं। और उनका क्या भाव है? जब आप कहते हैं दास, तो वो दास नहीं है जो इसीलिए सेवा करते हैं क्योंकि वे दास हैं। नहीं, वे तो पैसे के लिए सेवा करते हैं, तो वे दास नहीं हुए। वे अपने पारिश्रमिक के लिए सेवा करते हैं, वे दास नहीं हैं।
तो जब हम दास कहते हैं तो उसका अलग अर्थ होता है। वो अर्थ केवल भक्तों द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रदर्शित होता है या स्पष्ट होता है। तो हनुमान कैसे उन्होंने रामचंद्र को सेवा दी, कैसे हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं बिना मिथ्या अहंकार के, जैसे कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक तुच्छ नौकर की तरह, बिना झूठी प्रतिष्ठा की भावना के, वो होता है दास। एक दास नहीं हो सकता अगर वो स्वार्थ रहित नहीं है तो, अगर वो निस्वार्थ नहीं है तो, अगर वो उसके बदले में कुछ ले रहा है या उसकी कुछ अपेक्षाएं हैं उस सेवा से, तो प्रभुपाद ने हमें कई तात्पर्य में बताया है, एक दास अपने स्वामी की सेवा नहीं कर सकता अगर वहाँ पैसा न हो, और स्वामी अपने दास को वेतन नहीं दे सकता अगर सेवा नहीं है तो वो सेवा नहीं है। सेवा तो भक्तिमय ही होती है। तो प्रभुपाद ने सेवा में भक्ति ये जोड़ दी, तो उन्होंने कहा भक्तिमय सेवा। हनुमान दास भाव के पूर्ण प्रतिनिधि हैं, दास के प्रतीक हैं, क्योंकि उन्होंने परम पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की सेवा करी 100%। वे कुछ भी करने को तैयार हैं उनकी सेवा में। हनुमान जी की एक लीला है, उन्होंने सीता देवी से एक बार पूछा, ये आप मांग में ये सिंदूर क्यों लगाती हैं, इसका क्या मूल्य है, क्यों लगाते हो आप ये? मेरे प्रभु की प्रसन्नता के लिए। तो हनुमान जी गए और बाल्टी भर करके उन्होंने पूरा नहा लिया सिंदूर से। तो वे बोले, ये क्या है? मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है, मुझे अपनी सेवा से प्रसन्न करना है, मैं बस उनको प्रसन्न करना चाहता हूँ अपनी सेवा से। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ उनको प्रसन्न करने के लिए। हनुमान जी भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनसे कहिए अग्नि में कूद जाइए तो वो दूसरी बार नहीं सोचेंगे, बिना विचारे बिना झिझक के वो कर देंगे। ये हनुमान जी हैं। तो हम धन्य हैं ये अद्भुत द्वीप इसमें आकर, और महान व्यक्तित्व जो हमें भक्ति का पथ दिखाते हैं। Showing us the way of bhakti. Shri Hanuman ji ki jai. So Modadrum Dweep is non-different from तो Ayodhya. मोदद्रुम द्वीप अयोध्या से अभिन्न है और यह ब्रजमंडल के भांडीर वन से भी अभिन्न है। तो मोद्रुम द्वीप मतलब मोद और द्रुम का द्वीप। मोद मतलब है परम आनंद, ब्लिस। द्रुम मतलब वृक्ष। तो रामचंद्र जी त्रेता युग में आए थे इस मोदद्रुम द्वीप में, और वे एक बरगद के पेड़ के नीचे थे और वे बहुत प्रसन्न, वो परम आनंदित थे। तो ये देखकर सीता देवी रामचंद्र भगवान से प्रश्न पूछती हैं, मेरे प्रभु आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो रामचंद्र बोले कि आने वाले कलयुग में मैं यहाँ प्रकट होऊंगा गौरचंद्र के रूप में। मैं यहाँ निमाई पंडित के रूप में आऊँगा और आप भी प्रकट होंगी सीता देवी, आप भी विष्णु प्रिया के रूप में प्रकट होंगी और कौशल्य देवी भी शची माता के रूप में आएंगी। और वे बता रहे थे, भगवान रामचंद्र सीता देवी को बता रहे थे कि इस लीला में आप वन में जाओगे और मैं आपके स्वर्ण रूप की आराधना करूँगा, परंतु प्रतिदान में जब मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊँगा तब मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा। उस लीला में मैं वन में जाऊंगा और फिर आप मेरी सुनहरे विग्रह की आराधना करेंगी। तो महाप्रभु यह लीला बता रहे थे और वे सीता देवी को कह रहे थे कि मेरे निमाई वाली लीला में मैं 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लूंगा। सीता देवी ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा कि अगर आपको संन्यास लेना है तो फिर विवाह की क्या आवश्यकता है प्रभु। जब महाप्रभु ने एक बहुत ही गुप्त बात सीता देवी को बताई। ये इस द्वीप पे विप्रलंब का भाव है। आप सबको पता है कि कृष्ण की मिलाप में भी हम सेवा कर सकते हैं और विरह में भी।
तो जब भक्त मिलन में कृष्ण की सेवा करते हैं उसे संभोग कहते हैं, और जब भक्त विरह में कृष्ण की सेवा करते हैं तो उसे विप्रलंब कहते हैं। तो गौड़ीय वैष्णवों का जो भाव है वह विप्रलंब का भाव है। चैतन्य महाप्रभु इसी भाव को दर्शाने के लिए आए थे और भगवान रामचंद्र ने सीता देवी को यह प्रकट किया कि भगवान भक्तों को अपने से दूर करते हैं उनके प्रति प्रेम को तीव्र करने के लिए, और जब उस विरह के बाद मिलन होता है तो वो तीव्रता बहुत बहुत अधिक होती है। तो भक्तों के प्रेम को अत्यधिक बढ़ाने के लिए भगवान भक्तों को अपने विरह में रखते हैं। तो राधा रानी ने भी वो विरह अनुभव किया जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा। यही भाव चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुभव किया गया जब वे जगन्नाथपुरी में थे। तो वही भाव भगवान रामचंद्र सीता देवी को समझा रहे हैं इस द्वीप गोद्रद्वम द्वीप में। तो गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये द्वीप बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस गोपनीय संदेश के कारण जो भगवान राम ने सीता माता को यहाँ दिया था, भगवान रामचंद्र यहाँ पर उस परम आनंद का अनुभव कर रहे थे उस वृक्ष के नीचे। इसीलिए आनंद और वृक्ष के स्थान को मोदद्रुम द्वीप कहते हैं। So Lord Ramchandra was experiencing the bliss or delight under a banyan tree, and because of that this island is known as Modadrumodip. Hare Krishna, Shushagatam, Bhaktabrinda, Navadip Dham Parikrama। আজকে আমরা মধ্যম দ্বীপে এসেছি এবং আমাদের সঙ্গে পূজ্যপাদ শিলা বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ উপস্থিত আছেন। উনি আমাদেরকে নিয়ে পুরো মধ্যম দ্বীপে একটু ভ্রমণ করবেন। চলুন আমরা এখন মন্দির দর্শন করতে যাই। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama हरे कृष्णा। सुस्वागतम भक्तवृंद। अब हम सारंग मुरारी के इस स्थान पर आए हैं। हमारे साथ परम पूजनीय भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज हैं। महाराज, क्या आप हमें इस जगह की महिमा और यहाँ की लीला के बारे में बता सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु अपनी विद्या लीलाओं में यहाँ आते थे। उनके नित्य पार्षद सारंग मुरारी यहाँ निवास करते थे। सारंग मुरारी এখানে অবস্থান করতেন। সারঙ্গ মুরারি महाप्रभु वे उनके पिता की उम्र के थे और महाप्रभु उनका सम्मान करते थे। यहाँ बैठकर वे कृष्ण कथा करते और मदन गोपाल की पूजा करते। गोपालेर सेवा करतें। मुझे आशा है आपने विग्रहों के सुंदर दर्शन किए हैं। महाप्रभु सब समय भगवान चैतन्य पूछते हैं, मेरे प्यारे प्रभु, आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? आपके बाद कौन मदन गोपाल की सेवा करेगा? आपको योग्य शिष्य बनाना चाहिए। लेकिन सारंग मुरारी सहमत नहीं होते। वे कहते थे, योग्य शिष्य को ढूंढना कठिन है। एक निष्ठावान सेवक, एक इस प्रकार का शिष्य आध्यात्मिक गुरु के लिए सौभाग्य की बात होता है। मुझे ऐसा कोई योग्य शिष्य नहीं दिखता है। भगवान चैतन्य का उत्तर होता, यह गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को योग्य बनाए, और इस तरह वे उनसे जिद करते। महाप्रभु बोलছেন গুরুদেব তাকে যোগ্য করে তুলবেন,
आखिरकार सारंग मुरारी ने कहा, ठीक है, मैं योग्य या अयोग्य का अब विचार नहीं करूंगा। আমি তো যোগ্য অযোগ্য বিচার করতে পারবো না। কালকে कल सुबह मैं जिसे भी देखूंगा अपने शिष्य के रूप में उसे स्वीकार करूंगा। তাকেই আমি দেখা দেব। तो ওনার तो अपने दैनिक कार्यक्रम में वह उठते थे, गंगा स्नान करते थे। तो वो उस समय सोच रहे थे कि मैंने महाप्रभु को वचन दिया है, चलो देखते हैं कल सुबह मैं किसे देखता हूँ। तो वे अगले दिन सुबह गंगा के किनारे आए, जो उनके घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। वहां जाकर उन्होंने प्रणाम किया और जैसे ही उन्होंने पानी में पहली डुबकी ली, उनके शरीर को कुछ छू गया। उन्होंने देखा वह एक शव था। वह एक सुंदर युवा किशोर का मृत शरीर था। सिर मुंडा हुआ था, पवित्र जनेऊ धारण किया था, अच्छे वस्त्र पहने थे और उसके शरीर पर तिलक के निशान थे। उसकी आंखें आधी बंद थीं, मानो वह सो रहा हो। उसे देखकर सारंग मुरारी चकित हो गए। उन्होंने सोचा, इतना सुंदर लड़का, अगर मेरे पास ऐसा बालक होता तो मैं उसे एक अच्छा शिष्य बना देता। এইরকম ছেলে যদি আমি একটা পেতাম তাহলে আমি শিষ্য রূপে বরণ করতাম। কিন্তু মৃত। लेकिन यह लड़का मृत था। फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने महाप्रभु को वचन दिया था कि वे योग्य अयोग्य का विचार नहीं करेंगे। जिसे भी वह पहले मिलेंगे उसी व्यक्ति को दीक्षा देंगे। तो इस तरह से सोचते हुए उन्होंने उस मृत युवा के कान में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही उन्होंने मंत्र कहा, बच्चे के मृत शरीर में जीवन के लक्षण दिखाई दिए। लड़के ने अपनी आंखें खोली और वह उठ बैठा। सारंग मुरारी ने पूछा, आप कौन हैं? लड़के ने जवाब दिया, मैं एक मृत किशोर था। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरा यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ पहनने के समारोह के तुरंत बाद मैं एक सर्प के द्वारा डस लिया गया। और सर्प द्वारा डसे गए व्यक्तियों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, वे गंगा में जलमग्न किए जाते हैं। तो मेरे माता पिता ने मुझे गंगा नदी के किनारे बहा दिया। बड़े सौभाग्य से मैंने आपका संग पाया है और पुनः अपना जीवन पाया है। मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा। हे प्रभु, আপনার চরণে আমি দাস হয়ে আপনার সেবা করতে চাই। আর सारंग मुरारी ठाकुर ने अब तक इस लड़के के लिए पितृत्व का स्नेह विकसित कर लिया था। उन्होंने सोचा कि महाप्रभु ने मुझे पहले दिन कहा था कि वे दीक्षा दें और शायद यह लड़का वही योग्य प्रत्याशी है। उन्होंने उसे दीक्षा दी और उसे वापस अपने निवास पर ले आए। यहाँ उन्होंने उसका नाम मुरारी चैतन्य दास रखा। अगले दिन जब महाप्रभु आए तो बालक महाप्रभु के पास गया, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। शिष्य ऐसे महाप्रभु के प्रणाम करेছেন, साष्टांग प्रणाम, हाथ जोड़ করে বসে और निरंतर रोता रहा। ঝর করে অশ্রু প্রেমাশ্রু নামছে। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो प्यारे बच्चे? लड़के ने उत्तर दिया, इस पतित आत्मा का नाम मुरारी चैतन्य दास रखा गया है। मुरारी चैतन्य दास। मैं महान वैष्णव सारंग मुरारी ठाकुर, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका एक तुच्छ सेवक हूँ। तब भगवान चैतन्य ने उन्हें परखने के लिए कहा, अधम एकजन सेवक। तो महाप्रभु परीक्षा चले बोल, अब जब आप अपना जीवन वापस पा ही चुके हैं तो आप अपने माता पिता के घर वापस क्यों नहीं चले जाते? लड़के ने जवाब दिया, मेरे घर और मेरे माता पिता के लिए मैं पहले ही अब मर चुका हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु का आश्रय कभी न त्यागूं। गुरुदेवेर चरणाश्रय छाड़ा আমি যাব না, এখানেই সেবা করব। भगवान चैतन्य ने तब सारंग मुरारी को बुलाया। वे आने में कुछ संकोच कर रहे थे। আর সারঙ্গ মুরারি অত্যন্ত লজ্জিত যে
महाप्रभुर काছে এসে সসম্ভ্রম महाप्रभु ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, कृष्ण ने आपको एक योग्य शिष्य भेजा है। सारंग मुरारी ने कहा, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन ये सब आपके कारण हुआ है। तो আপনার কৃপায় এই সমস্ত কিছু সংগঠিত হয়েছে। महाराज, क्या आप गुरु शिष्य के संबंध में भी कुछ कह सकते हैं? আপনার শ্রীমুখ থেকে শুনতে চান গুরু শিষ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে একটু দয়া করে উপদেশ দিন। গুরু শিষ্যের যে সম্পর্ক शास्त्रों में कहा गया है, বিভিন্ন পুরাণে ও বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ তস্যৈতে কথিত হার্থা প্রকাশন্তে महात्मनो। यदि शिष्य आध्यात्मिक गुरु को भगवान की तरह सेवा देता है, यया देवे पराभक्ति, देव का अर्थ है भगवान যস্য দেবে পরাভক্তি, দেবে মানে ভগবান, और गुरु का अर्थ आध्यात्मिक गुरु होता है। अगर कोई गुरु को भगवान का रूप मानता है, उसके लिए वैदिक शास्त्र प्रकट होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सारंग मुरारी ठाकुर ने अपने शिष्य को वैदिक ज्ञान के रहस्यों से अवगत कराया। यहाँ हम प्रतिदान देखते हैं। তার শিষ্যের হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এখানে सारंग मुरारी ठाकुर में पिता का स्नेह था। अगर मेरा ऐसा अच्छा बालक होता तो मैं स्वयं मदन गोपाल की सेवा के लिए उन्हें प्रशिक्षित करता। এরকম একজন উপযুক্ত ব্যক্তি যদি আমি শিষ্যরূপে বরণ করতে পারতাম, তাকে আমি নিজের মতো করে শেখাতাম ভক্তি এবং মদন গোপালের সেবা। ऐसे आध्यात्मिक गुरु और योग्य शिष्य भी जो दृढ़ था, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा कभी नहीं त्यागूंगा, जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण करते हुए उन्होंने आध्यात्मिक गुरु के लिए समर्पण का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। গুরু ভক্তের নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন এবং और भगवान चैतन्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुरारी चैतन्य दास को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। তিনি আশীর্বাদ করলেন, তোমার জীবনের একমাত্র आपका जीवन आपके गुरु और मदन गोपाल की सेवा के लिए है। तो हम सब जिन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया है, सारंग मुरारी ठाकुर और मुरारी चैतन्य प्रभु और मदन गोपाल से प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति इस तरह के दृढ़ समर्पण को विकसित करें, इस स्थान को प्रणाम करें और इस स्थान की रज को अपने माथे पर लें। বর্ধিত হয় এবং গুরুদেবের কৃপায়, মহাপ্রভুর কৃপায়, মদন গোপালের কৃপায় আমরা আমাদের এই শিষ্য জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারি। এইখানে সেই কৃপা লাভ করবেন, গড়াগড়ি করুন, আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। हरे कृष्ण। महाराज এই বিশেষ महाराज, क्या आप इस दिव्य वृक्ष के बारे में कुछ बता सकते हैं? সম্বন্ধে একটু বলুন। हम सारंग मुरारी के इस स्थान पर आए हैं और यह सिद्ध बकुल वृक्ष है। সারঙ্গ মুরারি শ্রীপাঠ সিদ্ধ বকুল স্থান। মহাপ্রভু भगवान चैतन्य यहाँ आकर कृष्ण की कथा की चर्चा करते। সারঙ্গ মুরারি এখানে বসতেন, কৃষ্ণ কথা আলোচনা করতেন। महाप्रभु जब भगवान चैतन्य अपने विद्यानगर के स्कूल के मार्ग से यहाँ आते थे। विद्यानगर जावर सारंग मुरारी जो मदन गोपाल की सेवा कर रहे थे, এখানে এসে বসতেন। সারঙ্গ মুরারি এখানে রাধা मदन गोपाल सेवा करते हैं। वे इस वृक्ष के नीचे बैठ जाते और हर रोज कृष्ण के 1 लाख से अधिक नामों का जप करते थे। इतना जप करते हुए उन्होंने इस स्थान को दिव्य बना दिया था। नाम जप करते हैं, লক্ষাধিক নাম জপ করতেন প্রতিদিন। জপ করতে করতে জায়গা সিদ্ধ হয়ে গেছে। तो भगवान चैतन्य ने एक दिन पूछा, आप यहाँ इस वृक्ष के नीचे जप करते हैं, लेकिन अगर यह वृक्ष किसी दिन मर जाता है तो क्या होगा? তুমি এই রোদ্রে বসে ভজন করো, গাছটা যদি মারা যায় কি হবে? सारंग मुरारी ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता प्रभु। भगवान चैतन्य ने मुस्कुराते हुए वृक्ष को गले लगाया और इसे दिव्य बना दिया। महाप्रभु आलिंगन করেছেন। महाप्रभुर আমলের গাছ। अब यह कभी नहीं मरेगा। तो यह वृक्ष भगवान चैतन्य के समय का है। भगवान चैतन्य की कृपा लेकर इस वृक्ष को भगवान चैतन्य का व्यक्तिगत स्पर्श मिला है।
तो आइए हम इस वृक्ष से आशीर्वाद लें। पहले हम आते थे तो हम इस वृक्ष को गले लगाते थे, लेकिन अब इसे किसी भी प्रकार की हानि से बचाने के लिए इसके चारों ओर एक मंच बना दिया गया है और एक बहुत ही सुंदर वृंदावन जैसा उद्यान भी यहाँ आसपास ही है। प्रसादम, जैसे कि यह पुरुषोत्तम मास है और मैं पुरुषोत्तम व्रत रख रहा हूँ, मैं अवश्य अन्न खा रहा हूँ। इस शुभ समय में परिक्रमा करना बहुत अच्छा लगता है। Krishna Leela Bhagavate Kohe Ved Vyas Chaitanya Leela Vyas Vrindavan Das। আমরা এখন এসেছি श्री वृंदावन दास। हम अब वृंदावन दास ठाकुर के श्रीपाद पर हैं। अब महाराज हमें बताएंगे कि हमारी परंपरा में वृंदावन दास ठाकुर कौन हैं, उनकी लीलाएं क्या हैं। আচার্যগণ মধ্যে উনি কে এবং অবদান কি এবং এই জায়গা গুরুত্ব महाराज একটু আলোচনা করবেন। श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो वे भी अपने सभी नित्य पार्षदों के साथ अवतरित हुए। भगवान कृष्ण এই নবদ্বীপ ভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার সমস্ত পরিকর। तो वेदव्यास देव चैतन्य लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए। जैसा कि हम देखते हैं कि वेदव्यास देव ने वेदों को संकलित किया और इसे 4 भागों में विभाजित किया। वेद रचना করলেন, वेदকে 4 ভাগে ভাগ করলেন। और जो लोग वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उन्होंने उनके लिए महाभारत इत्यादि लिखे। এবং যারা বেদ পড়তে পারবে না, স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধু নাম, তাদের জন্য महाभारत इतिहास रचना করলেন। उन्होंने श्री भागवतम भी लिखा। तो वेदव्यास जिन्होंने भागवतम लिखा, वे वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। যে ভাগবত রচনা করেছেন তিনি এখানে और गौर भागवत या चैतन्य भागवत उन्होंने लिखी। ভাগবত বা গৌর ভাগবত এখানে শ্লোকে বলা হয়েছে নারায়ণের চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন, তার গর্ভে জন্মিলা শ্রী দাস বৃন্দাবন। श्रीवास ठाकुर की बहन नारायणी देवी थी। भगवान चैतन्य ने उन्हें अपना उच्छिष्ट दिया और आशीर्वाद दिया। এবং তারই গর্ভে उस सौभाग्यशाली बालिका के गर्भ से बाद में वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए। यह वृंदावन दास ठाकुर का वास्तविक जन्म स्थान है। বৃন্দাবন দাস কইল চৈতন্য মঙ্গল, যাহার শ্রবণে নাসে সর্ব অমঙ্গল। कोई व्यक्ति जो चैतन्य भागवत पढ़ता और सुनता है, वह स्वयं को और दूसरों को अत्यधिक लाभ पहुंचाता है। कृष्ण भक्ति क्या है, कौन है निताई गौरंगा, ये जानने के लिए चैतन्य भागवत को पढ़ना चाहिए। वह चैतन्य भागवत इस्कॉन में बंगाली और अंग्रेजी में उपलब्ध है। আমাদের কাছে চৈতন্য ভাগবত আছে, এত সুন্দর আমাদের ইস্কনে চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ
এবং ইংরেজিতে বাংলাতে বিভিন্ন ভাষায় রচনা আছে। মনুষ্য রচিতে নারে ওইছে গ্রন্থ ধন্য, বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা श्री चैतन्य। वृंदावन दास ठाकुर यह चैतन्य भागवत यद्यपि वृंदावन दास ठाकुर द्वारा लिखी गई थी, लेकिन वास्तव में भगवान चैतन्य द्वारा उन्हें सुनाई गई थी। वृंदावन दास ठाकुर ने हमें बहुत मूल्यवान रत्न दिया। वृंदावन दास ठाकुर जगतेर एक महान काज करे गेছেন, महान काज करे गेছেন। कृपया इस पुस्तक का लाभ अवश्य लें। जो लोग बंगाली जानते हैं वे इसे पहले ही पढ़ सकते हैं और अब तो इसका अनुवाद भी इस्कॉन में उपलब्ध है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ यह स्थान अच्छी तरह से संरक्षित है। हम इस्कॉन की ओर से भगवान चैतन्य और उनके पार्षदों के इन स्थानों को संरक्षित करने पर भी काम कर रहे हैं। उनकी रक्षा और विकास के लिए हम यहाँ नवद्वीप धाम के 9 ही द्वीपों में प्रयास कर रहे हैं ताकि भक्त वहाँ आ सकें और वहाँ निवास कर सकें और अपना भजन कर सकें। इस काम को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। সংস্কার করব এবং সারা বছর যখন পরিক্রমাকারী ভক্ত আসবেন সেখানে অবস্থান করবেন, রাত্রি যাপন করবেন, এখানে ভজন করবেন। তাই সে সমস্ত স্থানে সংস্কারের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। इसलिए हम विनम्रता पूर्वक आपसे योगदान देने का अनुरोध करते हैं ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन पवित्र स्थानों को संरक्षित कर सकें। তারা এসে সুন্দর করে ভজন করবে এবং বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তথা অন্যান্য শ্রীপাঠ থেকে আশীর্বাদ লাভ করবে, তারাও ধন্য হবে তাদের জীবন। Mahaprabhu spoke to Nityananda Prabhu and Haridas Thakur in Chaitanya Bhagavat. Vrindavan Das Thakur describes, Shino Shino Nityananda, Shino Haridas Shavatra Amaragai Koroho Prakash. Listen, O Nityananda, listen Haridas. Savatra, everywhere and anywhere. Koroho Amar Agai Koroho Prakash. My Amar Agai, my teachings. You reveal them everywhere. Prati Gore Goregi Koro Ebika Bhaja Krishna Bala Krishna Koro Krishna Shika. And in this way Mahaprabhu inaugurated the preaching movement of the Sankirtan movement, and his 2 principal preachers were Haridas Thakur and Nityananda Prabhu. So the teachings of Mahaprabhu, the life of Mahaprabhu, the spirit of Mahaprabhu, Mahaprabhu Doya, the mercy of Chaitanya Mahaprabhu is described by Vrindavan Das Thakur in his descriptions of Mahaprabhu's appearance in Navadip Leela. And having come to this place where Vrindavan Das Thakur compiled the Sri Chaitanya Bhagavat, we seek his blessings that we can similarly Savatra Amanagai Koroho Prakash, we can contribute to Mahaprabhu's teachings being spread further and further all over this planet. प्रिय भक्तों, अब हम यहाँ अर्कटीला में हैं। मोदद्रुम द्वीप की परिक्रमा करने के बाद हम अंततः गंगा के किनारे अर्कटीला में आ गए हैं। তার শেষ প্রান্তে পাশে রয়েছে গঙ্গা, গঙ্গার তীরে ए अभिन्न सूर्य टीला। यह स्थान वृंदावन के सूर्य कुंड से अलग नहीं है। श्रीमती राधा रानी रोज सूर्य देव की पूजा करने जाती थी। ललिता, विशाखा, सुदेवी, रंगदेवी, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, इनके साथ श्रीमती राधा रानी। सभी अष्टसिखियां सबसे पहले राधा कुंड में मिलती थी। राधा रानी प्रथमे বৃন্দাবনে রাধা কুণ্ডে মিলিত হতেন। রাধা কুণ্ডে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে সখীবৃন্দকে নিয়ে और वहां से वे उनके साथ सूर्य कुंड तक जाती थी। रास्ते में वे सूर्य देव की पूजा के लिए कुसुम सरोवर से फूल तोड़ती थी ताकि सूर्य देव सूर्य कुंड नवद्वीप में अर्कटीला के रूप में प्रकट हों। अर्कटीला से अभिन्न बृंदावन अर्कटीला এইটা হচ্ছে এই স্থান। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं, व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं, गोपांगनानां चतुकुलचौरं, गोपांगनानां चतुकुलचौरं, अनेकजन्मार्जित पापचौरं, अनेकजन्मार्जित पापचौरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि,
चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुद श्यामलकान्तिचौरं नवाम्बुद श्यामलकान्तिचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।